Hello everyone, good morning. Let us start question number 17 of chapter 5, retirement of a partner of class 12. And so many videos I have posted on this chapter. So many questions I have solved regarding this chapter, retirement of a partner. And in this video I will solve question number 17, which is given in page number 249. And here I have written the question. Board is very small, so and the question is very big, so I have written the question in short. And you can see this question in page number 249 of the Shivlal accountancy book of class 12. Let us start with this question. Garg, Pradhan and Jain are sharing profit and loss in 3:2:1. There are the three partners and their ratios are given 3:2:1. Pradhan retires on 31st March. Here Pradhan retires. Pradhan is retiring from the firm. We are doing the retirement chapter. So one partner is retiring. Pradhan is retiring from the firm on 31st March. On 31st March he is retiring from the firm. The capital of the partners were 6,000, 5,000 and 4,000. These are the capitals given. His share of goodwill valued at 4,500. Where share of goodwill is given 4,500. Machine is reduced by 1,200. Stock is reduced by 800. Provision for doubtful debts rupees 280. Creditors decreased by 600 and the patents which book value was 300 become valueless. Prepare profit and loss adjustment account and partners capital account. So in this question we have to make the profit and loss adjustment account and the partners capital account. So profit and loss adjustment account means revaluation account, both are same. Revaluation account and partners profit and loss adjustment account, both are same. So here I have drawn the line for the revaluation account. This account I have already explained in the earlier videos. So this is the revaluation account. In the debit side, decrease in assets, increase in assets. Here increase in liabilities and decrease in liabilities. This is the format of the revaluation account. एंड इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं. हम इससे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं. बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ होता है. तो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होते हैं? ओनली द इंक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो रीवैल्यूड हो रहे हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होते हैं. कैपिटल एंड गुडविल आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें एंट्री नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द कैपिटल्स आर गिवन, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन, गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता है. मशीन इज रिड्यूस्ड बाय, मशीन इज रिड्यूस्ड बाय यहाँ से रिकॉर्ड होगा. जो एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं. सो मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1,200. रिड्यूस्ड मतलब कम होना, और मशीन इज एन एसेट्स. मशीन इज एन एसेट्स, और एसेट्स ये डिक्रीज इन एसेट्स इज रिटन इन द डेबिट साइड. इस तरफ आएगा. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. मशीन टू मशीन, मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1,200. 1,200 से कम हो रही है. बाई लिखा है, बाय 1,200. सो यहाँ पर 1,200 लिखना है. मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1,200. स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 800. स्टॉक इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बाय 800. 800 रुपए से स्टॉक कम हो रहा है. स्टॉक इज ऑल्सो एन एसेट्स एंड इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. ये भी एसेट्स होता है और रिड्यूस हो रहा है. और डिक्रीज इन एसेट्स इस तरफ लिखा जाता है. डिक्रीज और रिड्यूस दोनों एक ही चीज होता है. स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय रुपीज 800. स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है 800. क्लियर? मशीन कम हो रही थी, इस तरफ लिखा क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द टू साइड. स्टॉक एसेट्स होता है, स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द टू साइड बिकॉज डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन टू साइड्स. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द टू साइड. ये हमेशा याद रखना है, प्रोविजन हमेशा टू साइड में रिकॉर्ड होता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रुपीज 280. ये 280 रुपीज है. और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो टू प्रोविजन. प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड इन द टू साइड. टू प्रोविजन 280. Now next is creditors decreased by 200. Creditors liabilities होती है और decrease मतलब कम हो रही है. liability decrease हो रहा है. So here it is written decrease in liabilities in the buy side, credit side. By creditors, by creditors. Creditors has been decreased by 600. 600 rupees से कम हो रहा है. 600. And the patents
which book value was 300 become valueless, and the patent is an assets, goodwill, trademark, patent ये सब assets होते हैं. Patent is an assets whose book value was 300, जिसकी book value 300 थी, become valueless, अब valueless हो गया. whose book value was 300, जिसकी value 300 थी, अब valueless हो गया. मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है. पहले 300 था, अब क्या हो गया है, valueless. So patent is an assets, और assets कम हो रहा है, decrease in assets to patent. कितना कम हो रहा है, पहले था 300, पेटेंट वैल्यू वॉज 300 बिकम वैल्यूलेस, अब वैल्यूलेस हो गया. वैल्यूलेस मीन्स निल, उसकी वैल्यू 0 हो गई है. सो कितना कम हो गया, पूरा 300 रिड्यूस हो गया, पूरा 300 कम हो गया. क्लियर. नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नथिंग इज गिवन. वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जितने एसेट्स और लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहे थे, रीवैल्यूड हो रहे थे, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया. अब और कुछ भी नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे. डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल करो. जो टोटल ज़्यादा है दोनों साइड में से वो लिखेंगे. सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 600, यहाँ का टोटल 600 हमें दिख रहा है, और यहाँ का टोटल कितना है, 12 + 8 2000, 2000 3 4 5 2580. So the total of the debit side is 2580. तो यहाँ पे दोनों में से ज़्यादा कौन सा टोटल है, दिस साइड टोटल इज 2580 एंड दिस साइड टोटल इज 600. ज़्यादा टोटल ये वाला है. सो 2580 विल बी रिटन ऑन बोथ द साइड. क्लियर. ये समझ में आया. जो टोटल ज़्यादा होगा दोनों में से वो टोटल दोनों साइड लिखना है. अब क्रेडिट साइड टोटल इज 600, क्रेडिट साइड का टोटल 600 है. वन साइड टोटल इज 2580 एंड अदर साइड टोटल इज 600. दोनों को लेस कर देंगे. 0 8 9 1 1980 1980. ये दोनों को लेस करके आया. कम किस साइड है, बाई साइड में कम है. सो बैलेंस विल बी रिटर्न इन द बाई साइड 1980. अगर इस तरफ कम होता तो यहाँ पर लिखते, बट कम है क्रेडिट साइड में, सो द बैलेंस विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड 1980. 0 इस साइड अगर कम होता है, इट विल बी नोन एज टू प्रॉफिट. अगर यहाँ पर कम है तो इट इज अ लॉस, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉस. ये लॉस होगा. अगर इफ द बैलेंस इज इन द टू साइड, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट. इफ द बैलेंस इज इन द बाई साइड, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉस, बाई लॉस 1980. Now there are three partners, Garg, Pradhan and Jain. So this loss will be distributed among the three partners. Garg, I am writing the name in the short, Garg, Pradhan and Jain. Either there is a profit or there is a loss, it will be distributed among the partners. Profit हो या loss हो, ये distribute होगा partners में. So here we got the loss 1980. So it will be distributed among the partners, three partners. किस ratio में distribute होगा, ratio is given 3:1. This is the ratio. So इसको ratio रबर करते हैं. 1980 into 3. Ratio is given 3:2:1. This is the ratio. 3 + 2 5 + 1 6. 3/6, 2/6 and 1/6. ओके. इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैंसिल करते हैं 6 के टेबल से. 6 1 6, 6 3 18, कैरी 1, 6 3 18 and 0. 330 into 3, 3 0 0, 3 3 9, 3 3 9, 990. फर्स्ट वन वी गॉट 990. तो गर्ग में 990 लिख दो. समझ में आया मैंने क्या किया, 6 के टेबल से कैंसिल किया है. 6 1 6, 6 3 18, कैरी 1, 6 3 18 and 0. 330 into 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 3 6, 660. And the last one, of course, we will get 330. So 330. This we have distributed the loss in their profit sharing ratio. So here we complete the revaluation account. So now we have to draw the partners capital account. Here I have drawn the partners capital account. Heading partners capital account. Particulars Garg, Pradhan and Jain. Particulars Garg, Pradhan and Jain. You have to write the name in full. Don't write in short as I have written, because I am not having the space in the board. So I have written the name in the short. Garg, Pradhan, Jain. Garg, Pradhan, Jain. Partners capital account. So now how to make the partners capital account. First of all, the first entry is always done by balance brought down. ये एंट्री हम इसके पहले वाले चैप्टर से भी सेम एंट्रीज हम करते आ रहे हैं. तो इसमें देयर इज नथिंग न्यू इन दिस एंट्री.
फर्स्ट एंट्री इज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है एंड दैट कैपिटल इज गिवन। अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग। गर्ग, Pradhan and Jain sharing profit and loss in 3:2:1. Pradhan retires on 31st March. The capital of the partners were 6,000, 5,000 and 4,000. Their capitals are given 6,000, 5,000 and 4,000. क्लियर। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री होती है। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज, इसको प्रॉफिट, ये लॉस है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं टू लॉस 990, 660 एंड 330। ओके, ये वाला लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया है। चल अब क्या एंट्री करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। नथिंग इज गिवन, सो वन आई एम रबिंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अब यहाँ से तो हमने सारी एंट्रीज कर ली है, इसको रब कर देते हैं तो वहाँ पे आई विल डू द रब वर्क। देयर आई विल डू द रब वर्क। द मेन प्रॉब्लम इज टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड द गुडविल। गलती यहीं पर होती है, ऑल द मिस्टेक्स आर डन इन रिकॉर्डिंग द गुडविल। सो हाउ टू रिकॉर्ड द गुडविल। इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन सम जर्नल एंट्रीज और रेशियो कैसे फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर रेशियोज आर गिवन 3:1. दिस इज द रेशियो 3:2:1. Garg, Pradhan and Jain. And the Pradhan retires. First, how to do the journal entry? This journal entry should be done in the rough work. तो यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? प्रधान रिटायर्स। सो मैंने ये बताया था कि जो भी रिटायर होता है उसको हमेशा 2 में लिखते हैं। 2 प्रधान। ये जो प्रधान है ये अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जाएंगे, तो 2 प्रधान। और द रूल इज दैट द पार्टनर हु इज रिसीविंग विल बी डेबिटेड एंड द गिवर विल बी क्रेडिटेड। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, सो द रिमेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड बिकॉज दे विल रिसीव हिज शेयर। प्रधान जो है अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जा रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 2 में लिखते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं उसको डेबिट में लिखेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे हैं? गर्ग एंड जैन। सो गर्ग अकाउंट विल बी डेबिटेड, Garg will be debited and Jain account will be debited. This is just a rough work. Garg's account debited and Jain's account debited to Pradhan. Clear? Now the goodwill. His share of goodwill was valued at 4,500. His share of goodwill, his मतलब जो रिटायर हो रहा उसकी goodwill दी हुई है। His share of goodwill is given 4,500. So Pradhan share is 4,500 right in the front of Pradhan. Clear? He will give his share to Garg and Jain. ये अपना शेयर गर्ग और जैन को देकर जाएंगे। इन विच रेशियो, किस रेशियो में देंगे? नाउ द रेशियो इज गिवन 3:1 एंड द प्रधान रिटायर्स। गर्ग, प्रधान एंड जैन ये रिटायर हो रहे हैं, इनको कट कर दो। ओके, नाउ द रेशियो इज रिमेनिंग 3:1। प्रधान को हमने अलग कर दिया, अब रेशियो क्या बची है? 3:1। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,500 इंटू 3/4, 4,500 इंटू 1/4। 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, carry 1, 4 2s are 8, carry 2, 4 5s are 20, 1 1 2 5 into 3, 3 5s are 15 के 5, carry 1, 3 2s are 6 and 1 7, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3 7 5 और ये 1 1 2 5. So first one we got 3 3 7 5 and the next one we got 1 1 2 5 after distributing. Now how to record in the partners capital account? ये तो हमने रबर कर दिया। जर्नल एंट्री जो रिटायर होता है उसको 2 में नहीं लिखते हो, बाकी पार्टनर्स डेबिट में हो जाएंगे। यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करना है? सो बाई सीइंग द जर्नल एंट्री, इसको देख के हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इस जर्नल एंट्री को देख के रिकॉर्ड करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। 2 प्रधान इज रिटन, 2 वाला 2 में रिकॉर्ड होते हैं हमेशा। यहाँ पे 2 साइड में 2 प्रधान। जर्नल एंट्रीज को देख के रिकॉर्ड करना है, कभी गलत नहीं होगा। 2 प्रधान और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये 2 हो गया, तो ये बाई वाले पार्टनर्स हैं, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द बाई साइड। बाई गर्ग, बाई जैन। ओके, जर्नल एंट्री देखो क्या किया है। 2 वाला जो था हमने 2 में रिकॉर्ड किया और बाई वाले जो थे बाई में रिकॉर्ड किया। ना जिसका नेम है उसमें डैश कर देंगे। 2 प्रधान, प्रधान में डैश कर दूं एंड बाई गर्ग एंड जैन, गर्ग एंड जैन दोनों में डैश कर दो। ओके, अभी हमने अमाउंट फिल नहीं किया है, जिसका नेम है उसमें डैश करना है। यहाँ पे प्रधान है, प्रधान में डैश किया। ये गर्ग और जैन है, गर्ग और जैन में डैश किया। नाउ वी हैव टू फिल द अमाउंट 3375 एंड 1125। यहाँ पे 2 जगह बची है तो इसमें फिल कर दो 3375
एंड 1125, इसमें कभी भी आपका गलत नहीं होगा। 3375 1125। ओके, और भी कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल कर देंगे। इन अकाउंट्स ऑलवेज द टोटल विच इज ग्रेटर आर रिटन ऑन बोथ द साइड। पहले जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो साइड दोनों तरफ लिखा जाता है। पहले हम जैन का टोटल रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे 4000 है, दिस इज ग्रेटर, सो राइट 4000। यहाँ का टोटल करेंगे 4000 दोनों में 4000 ज़्यादा है, ये 4000, और यहाँ का टोटल है 1455। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वी गॉट 2545। यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ कम है। इन द सेम वे प्रधान टोटल, प्रधान का टोटल किया 9500 और इस साइड है 660। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 9500 इज ग्रेटर, सो 9500 हैज़ बीन रिटन ऑन बोथ द साइड। कम इस साइड है तो दोनों को लेस करेंगे 9500 एंड 660, वी गॉट 8840। इसको हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस। ओके, जिस साइड कम है उस साइड लिखना है। इन द सेम वे द टोटल ऑफ गर्ग ऑफ द क्रेडिट साइड इज 6000 और यहाँ का टोटल है 4365। दोनों को लेस किया, वी गॉट 1635। इस साइड कम है, इट हैज बीन रिटन एज 1635। सो इन पार्टनर इज प्रधान, प्रधान रिटायर हो रहे हैं, सो हिज शेयर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कैश बिकॉज द पार्टनर हु इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, ही इज लीविंग द फर्म, सो he will get his balance in the form of cash। वो रिटायर हो रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कैश दे देंगे, उनका बैलेंस नहीं लिखेंगे बिकॉज द बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। और वो तो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, वो कंटिन्यू बिजनेस नहीं करेंगे, सो हिज बैलेंस विल बी रिटन as to cash and the remaining partners balance will be written as to balance because they will continue the business। और ये बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उनका जो आंसर है बैलेंस के नाम से लिखना है क्योंकि ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहे हैं तो उनको कैश में लिखेंगे। So here we complete the question number 17 given in page number 249 of Shivlal Accountancy book. I hope you understood this question, and in the next video I will again solve some new questions. So till then, take care. Bye bye.